آپ کو بتائیں کہ حکومت کے ساتھ بیٹھک بے نتیجہ ثابت ہوئی اور پاکستان پیٹرول پمپ اونر ایسوسی ایشن ڈٹ گئی۔ فیصل آباد میں پیٹرول پمپ مالکان کی ہڑتال شروع۔ پیٹرول پمپ اونر ایسوسی ایشن نے پیٹرول کی فروخت بند کر دی۔ حکومت کی جانب سے مذاکرات کامیاب ہونے کا دعویٰ بھی مسترد۔ پمپ مالکان کہتے ہیں اب بس ہو گئی، مزید نقصان برداشت نہیں کر سکتے، کمیشن بڑھائے بغیر پمپ چلانا ممکن نہیں رہا۔ آل پاکستان پیٹرول پمپ اونر ایسوسی ایشن اور حکومت کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار۔ فیصل آباد میں پیٹرول پمپ مالکان کی ہڑتال شروع۔ پیٹرول پمپ ایسوسی ایشن نے پیٹرول کی فروخت بند کر دی۔ پمپ مالکان نے مذاکرات کامیاب ہونے کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ صدر فیصل ایسوسی ایشن رانا فیاض حسین اور سی سی ممبر مہر اویس پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے روزانہ کی بنیاد پر تعین پر برس پڑے۔ سارے ہیں، ہمارے ساری کیبنٹ ہے اور پورے فیصلہ آباد کے اگر کوئی چیدہ کوکو سائٹیں چل رہی ہیں ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ یہ کوئی شوق تو نہیں ہے ہمیں ہڑتال کرنے کا، تو ہمارے پاس اتنے ریسورسز ہی نہیں ہیں کہ ہماری سروائیول ہی نہیں ہے کہ ہم چلا سکیں۔ سٹی 41 سے گفتگو کرتے ہوئے پیٹرول پمپ مالکان کا کہنا تھا کہ اب بس ہو گئی، بہت نقصان ہو رہا ہے، مزید پمپ نہیں چلا سکتے، ہم مناسب کمیشن بڑھائے بغیر پمپ نہیں چلائیں گے۔ روزانہ کی بنیاد پر قیمت کے تعین سے عوام پر بم گرایا جا رہا ہے۔ یہ کاروبار اب چلانا بالکل نامکمل طور پہ حال ہو گیا ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک کہ یہ جو ڈیلی پرائس چینج ہے یہ کسی صورت بھی وائبل نہیں ہے۔ کم از کم اس حالات کے اندر جب جنگ ہو تو جنگ کے حالات کے اندر لوگ عوام کو سہولت دیتی ہے۔ عوام ہمارے اوپر ایران کے میزائل تو نہیں آ رہے، امریکہ کے میزائل، لیکن پیٹرول پمپ ڈیلی گر رہا ہے۔ پیٹرول پمپ مالکان کے بعد پیٹرول ٹینکر اونر ایسوسی ایشن کی جانب سے بھی 72 گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے۔ کیمرامین وحید محمود کے ساتھ بلال ڈوگر، سٹی 41 فیصل آباد۔ ہڑتال نہیں، صرف سٹاک کی کمی ہے، پمپ مالکان حکومتی جواب کے منتظر۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے پیٹرول پمپس کا بیانیہ سامنے آ گیا۔ کنوینئر فاروق نذیر کہتے ہیں فیصل آباد بھر میں کہیں ہڑتال نہیں کر رہے، جو پیٹرول پمپ بند ہیں ان کے پاس اسٹاک دستیاب نہیں، حکومت کو مطالبات پر عمل درآمد کے لیے 2 ہفتوں کی مہلت دی ہے۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے پیٹرولیم اینڈ پیٹرول پمپس کی جانب سے اہم بیان سامنے آ گیا۔ کنوینئر فاروق نذیر کہتے ہیں لیڈرشپ کی جانب سے حکومت کو 2 ہفتوں کا وقت دیا گیا ہے، حکومت سے مثبت جواب کی امید ہے، وزیر پیٹرولیم نے اچھی خبر دینے کی نوید سنائی ہے۔ ہمارا مین مطالبہ تھا کہ ہمارا جو پروفٹ مارجن ہے اس کو 8% کر دیا جائے، وہ انہوں نے کہا ہم اس کو کابینہ میں لے کے جاتے ہیں، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو گڈ نیوز آئے گی، اور 15 دن بعد ہم دوبارہ بیٹھیں گے اور اس پہ دیکھیں گے کہ یہ اس کو 15 دن میں چینج کرنا ہے، مہینے میں چینج کرنا ہے یا روز چینج کرنا ہے۔ فیصل آباد میں پیٹرول پمپس کی بندش کے متعلق بات کرتے ہوئے فاروق نذیر کا کہنا تھا کہ جو پمپس بند ہیں ان کے پاس سٹاک موجود نہیں ہے، ان کا ہڑتال سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کچھ کمپنیز کے پاس تیل ہی نہیں ہے، جو بڑی کمپنیز ہیں ان کے پاس تیل ہے، ان کے پمپس چل رہے ہیں، جو پمپس بند پڑے ہیں ان کی کمپنی کے پاس ہی تیل نہیں ہے۔ پیٹرول پمپس مالکان کی جانب سے امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ حکومت مثبت جواب دے گی اور پیٹرولیم مصنوعات کی ترسیل بلا تعطل جاری رہے گی۔ کیمرامین عقیل نقاش کے ہمراہ محمد علی نارو، سٹی 41 فیصل آباد۔ عام آدمی انتہائی پریشان، بزنس مین بھی شدید افسردہ۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا نیا طریقہ کار کسی طبقے کو نہ بھایا۔ پیٹرول اور ڈیزل مسلسل مہنگا ہونے پر چیمبر آف کامرس کا اظہار تشویش۔ صدر ایف سی سی آئی فاروق یوسف شیخ کہتے ہیں ڈیزل کی قیمت میں اضافے نے پیداواری لاگت اور ٹرانسپورٹیشن مزید مہنگا کر دیا۔ صنعت کاروں کی حکومت سے قیمتوں کا تعین ماہانہ بنیادوں پر کرنے کی اپیل کی ہے۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے تعین کے نئے طریقہ کار اور قیمتیں بڑھنے پر شدید تحفظات کا اظہار کر دیا۔ صدر فاروق یوسف شیخ کا کہنا تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات کو لے کر حکومتی اقدامات مناسب ہیں، عام آدمی ہو یا بزنس مین، اس اقدام سے سب شدید پریشان ہیں۔ ڈیزل کی قیمت میں مسلسل اضافے نے پیداواری لاگت اور ٹرانسپورٹیشن کو مزید مہنگا کر دیا ہے۔ جب پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھتی ہیں عام آدمی کی زندگی تنگ ہوتی ہے۔ ڈیزل بڑھنے سے انڈسٹری آلریڈی کرائسس کا شکار ہے، انڈسٹری جو ہے وہ مزید کرائسس کا شکار ہوگی۔ دیکھیں اس وقت بہت سارے مسائل ہیں، ایز آف ڈوئنگ بزنس نہیں ہے، آلریڈی ہم خطے میں مہنگے ہیں، اس سے ایکسپورٹ بھی ہماری متاثر ہوگی۔ صنعت کاروں نے حکومت سے پیٹرولیم مصنوعات کے ریٹ کا تعین ماہانہ بنیادوں پر کرنے کی اپیل کر دی ہے۔ کیمرامین عقیل نقاش کے ساتھ محمد علی نارو، سٹی 41 فیصل آباد۔ فیصل آباد ڈرائی فروٹ پر شپمنٹس کی حفاظت کے لیے جدید نظام متعارف، کسٹمز کلیئرنس کی مانیٹرنگ اے آئی سسٹم منسلک کر دی گئی۔ کنٹینر کھلنے پر منتقلی کے افسران کو الرٹ میسج اور ای میل موصول ہوگی۔ وزن کے طریقہ کار کے لیے بھی آن لائن سسٹم لاگو۔ کلیکٹر کسٹمز ڈاکٹر بشارت رضوان کہتے ہیں
एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएंगी। एक्सपोर्टर और इंपोर्टर्स के लिए अच्छी खबर। फैसलाबाद ड्राईपोर्ट पर दरामदी और बरामदी शिपमेंट की हिफाजत के लिए जदीद सिक्योरिटी निजाम लागू कर दिया गया। ड्राईपोर्ट पर हर तरफ सीसीटीवी कैमरे नस्ब कर दिए गए, जबकि सामान की कस्टम क्लियरेंस के मकामात पर भी खसूसी कैमरे लगा दिए गए। कलेक्टर कस्टम्स ऑपरेशमेंट डायरेक्टर बशारत रिजवान का कहना था कि जदीद कैमरों को AI से लैस किया गया है। कंटेनर खुलने या अपनी जगह से हटने पर तमाम अफसरान को अलर्ट मैसेज और ईमेल मौसूल हो जाती है। हमारे पास एक सिस्टम ऐसा डिप्लॉय हो चुका है जिसमें अब कोई भी कंटेनर अगर किसी भी टाइम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का किसी भी टाइम जब खुला है तो ऑटोमेटिकली सिस्टम हमें एक अलर्ट भेजता है कि ये कंटेनर इस लोकेशन पे खुल चुका है। तो अब वो जो अलर्ट है वो हमारी लिस्ट में जितने कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, ड्राईपोर्ट सिक्योरिटी के लोग हैं, वो सबको अलर्ट मिल जाता है। कस्टम्स हुकाम का कहना था कि माजी में चोरी और सामान की गैर कानूनी नकलो हमल होती रही। अब ड्राईपोर्ट अथॉरिटी के साथ मिलकर सामान की हिफाजत और मॉनिटरिंग यकीनी बना दी गई है। GM ड्राईपोर्ट सैयद मुजफ्फर हुसैन का कहना था कि दरामदी शिपमेंट्स की वजन का तरीकाकार भी ऑनलाइन कर दिया गया। मुल्क की दीगर ड्राईपोर्ट्स की निस्बत फैसलाबाद में जुर्माने भी मकामी करेंसी में वसूल किए जाते हैं, जिससे कारोबारी तबके को बड़ा रिलीफ मिलता है। वेबरेज का कंडा जो है वो ऑनलाइन सिस्टम है। अब उसमें वजन में भी कोई हेरा फेरी कर सकता, कोई मैनुअल उसमें एंट्री नहीं कर सकता। दूसरा ये है कि जो कंटेनर एक्सपोर्ट का जैसे होता है कराची से और इधर का मैं डिफरेंस ये बताना चाहूँगा कि कराची में जब एक्सपोर्ट जो उनका कंटेनर है अगर वो रुकता है ना कुछ अर्सा तो उसके चार्जेस पड़ते हैं डॉलर में। फैसलाबाद ड्राईपोर्ट जो है इसमें अगर एक्सपोर्ट का कंटेनर 2 महीने भी पड़ा रहे कोई चार्जेस नहीं पड़ते उसके। हुकाम के मुताबिक जदीद निज़ाम नस्ब करने का मकसद कारोबारी तबके के लिए एतमाद की बहाली और घर की दहलीज पर सहूलियत फराहम करना है। कैमरामैन सलीम राजपूत के साथ उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। फेस्को का डिजिटल निज़ाम बैठ गया, ऑनलाइन सर्विसेज मुतासर। एक माह में 15,000 से ज़ायद डिमांड नोटिस के जामे दाखिल। बिलों की दुरुस्तगी और ऑनलाइन तोसी के लिए भी सार्फिन को मुश्किलात का सामना। डिजिटल निज़ाम में खराबियों ने कंपनी की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। फेस्को का ऑनलाइन सिस्टम सल्फर खराबी का शिकार। ऑनलाइन सिस्टम की खराबी पर सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना। गुज़श्ता एक माह में 15,000 से ज़ायद डिमांड नोटिस का मुतासर। बिलों की कलेक्शन और ऑनलाइन तस्दीक का रद्द-ए-अमल भी सबूतौल। तकनीकी खराबी के बाद हज़ारों सार्फिन परेशानी में मुब्तला। फेस्को के ऑनलाइन निज़ाम की ने कंपनी की कारकर्दगी का सवाल उठा। डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन फेस्को सईद रज़ा का कहना था कि ऑनलाइन सिस्टम की खराबियां दूर कर दी गई हैं, सार्फिन ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। सार्फिन डिमांड नोटिस बिलों की मुकर्रर तारीख में तोसी समेत दीगर मसाइल हल करवा सकते हैं। सार्फिन का कहना था कि दफातर के चक्कर लगा कर थक चुके हैं, ऑनलाइन सिस्टम की खराबियां बरवक्त दूर करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन सलीम के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। आपको बताएं कि दरिया चनाब में सैलाबी सूरत-ए-हाल बरकरार है। चिन्योट के मकाम पर आबी रैलों ने दहशत फैलाती नवाही इलाकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया। नशेबी बस्तियां खाली करवाई जाने लगी। मसाजिद में अलानात मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिली की हिदायत कर दी है। मुमकिन रिलीफ ऑपरेशन के लिए तैयारियां मुकम्मल। ज़िला इंतजामिया और मुतल्लिका महकमों ने लंगोट फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक दरिया चनाब में चिन्योट के मकाम से 2,45,000 क्यूसेक तक का आबी रेला गुजर कर तरीमो बिराज की जानिब रवां दवा। दरिया के अपस्ट्रीम बिराजों पर भी पानी की आमद और खराज में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। हेड मराला में पानी की आमद 1,68,000 क्यूसेक जबकि खराज 1,53,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह हेड खानकी में पानी की आमद 2,22,000 क्यूसेक और हेड कादराबाद में 2,63,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है। जिला इंतजामिया ने दरिया के नवाई आबादियों के लिए अलर्ट जारी कर रखा है। रेस्क्यू 1122 पुलिस महकमा नार और दीगर मुतल्लिका इदारों का अमला फील्ड में मौजूद है। दरिया के करीब नशेबी इलाकों की मसाजिद में लाउड स्पीकर ज़ेर एलाना शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। इंतजामिया के मुताबिक दरिया में कश्ती रानी पर मुकम्मल पाबंदी आयद सयाहों को किनारों से दूर रहने के लिए सख्त हिदायत की गई है। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इमदादी सामान और कश्तियां हमा वक्त दस्तयाब है। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि दरिया में सैलाबी सूरत हाल की 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है। पानी की सतह में कमी या इजाफे की सूरत में फौरी इकदाम किए जाएंगे। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41 चिन्योट। दरिया की लहरें बुलंद, चनाब ठाठे मारने लगा। भवाना में खतरे की घंटियां सुनाई देने लगी। मौजा साहवल के करीब बिखरी मौजें आबादी में दाखिल। साहिली पट्टी पर मौजूद ठट्ठा नहरा, हशमत का ठट्ठा, मौसा उभान, टाहली मंगेनी और दीगर इलाके भी सैलाब की लपेट में आ गए।
कमिश्नर फैसलाबाद इमरान हामिद शेख मोअज़्ज़ज़ अमल के दौरा पर पहुंचे। इंतजामी अफसरान, डिप्टी कमिश्नर चनियोट आयशा रिजवान, इसके साथ एसी शीना आजम और दीगर अफसरान ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर डीपीओ चनियोट डॉक्टर नवीद आतिफ, डीएसपी भोना मोहम्मद सलीम संधू, एसएचओ मलक असदुल्ला खोखर समेत लेडीज कांस्टेबल, पैरा फोर्स, सिविल डिफेंस, रेस्क्यू 1122, महकमा सेहत, महकमा लाइफ स्टॉक और दीगर महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। साबिक एमएनए सैयद इनायत अली शाह ने भी मोअज़्ज़ज़ अमल दौरा किया। इस मौके पर साबिक एमएनए सैयद इनायत अली शाह का कहना था कि पिछले साल भी बड़ा सैलाब आया, इस दौरान 1 साल का वक्फा था। इंतजामिया सैलाब मुतासरीन से झूठे वादे करती रही मगर उनके लिए एक बंद नहीं बनाया गया। सैली इलाकों में सैकड़ों एकड़ ज़रिए राजी पहले ही दरिया बुर्द होगी। अब आबादी और गाँव को बचाया जा सकता था मगर ये हुकूमत और इंतजामिया की तरजीहात में शामिल नहीं है। साढ़े लोग सारे नकल मकानी पे करते हैं, दीवारां खोड़ के समान उन्हें पहले ही कर लिया। सानू हुण आन के हमला सारा तंग की खिलाया कि सारे तू निकलो निकलो, ते पुलिस आई खड़ी है, काफी आई खड़ी, सारे महकमे वाले आए होन, ये आंदे बे तू निकलो तो निकल के जावेन कि दे, ये सारे लोग किधर जावेन, इन्हां जगह कोई नहीं दिती गई। हुकूमत ने किसी किस्म का ना कोई तावन नहीं किया भी असां सानू जगह दे भी फलानी जगह तो टेंट ही कम अज कम ला छड़दे भाई लोग उत्थे शिफ्ट हो जाते। मैं तो यही गुजारिश करे सा कमिश्नर साहब नू कि साडे ਜਿਹੜੇ भी हैं बन मंजूर होए होन जल्दी तो जल्दी साडे बन बन जावें, सडड मंजूर होए सडड बन जावें तो साडा पिंड बच जावे। एलएडी का कहना था कि मंजूर करदा फंड्स में से हिफाजती बंद नहीं बनाया गया, जो पत्थर पड़ा है अब उस पर भी रेत जम चुकी है। उन्होंने करोड़ों रुपए लगाकर घर बनाया, अब उखाड़ रहे हैं मगर इस वक्त कहाँ जाएं। इंतजामिया पुलिस की मदद से उन्हें जबरदस्ती इधर से निकाल रही है मगर रास्ता नहीं दिखा रहे कि हम कहाँ जाएं। हर घर जा रहे हैं ऐसी हो रही थे नाल पुलिस दे महकमे वाले बंदे नाल लेडीज कांस्टेबल हैं नाल पैरा फोर्स दे बंदे हैं ओ साड़ियां औरतां नु आखदे हैं भाई बच्चे लेके निकलो, असी हुण किदे जाविए। एलएडी ने मुतालबा किया कि हुकूमत नकल मकाने के लिए मुतासरीन की मदद करे, उन्हें घर बनाने के लिए मुतबादिल जगह और माली इमदाद फराहम करे, जबकि वादे के मुताबिक हिफाजती बंद बनाया जाए ताकि मजीद तबाही और बर्बादी से बचाना मुमकिन हो सके। कैमरामैन आरिफ हुसैन के साथ फखर दीवान भुट्टा, सिटी 41 भोना। मानसून सीजन और सैलाबी सूरत हाल, सूबाई वज़ीर सेहत और चेयरमैन काबीना कमेटी बराए डिजास्टर मैनेजमेंट खासा सलमान रफीक का दौरा। झंग मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए जिले इंतजामिया की तैयारियों पर ब्रीफिंग। मीटिंग में एमपीए गजनफर अब्बास कुरैशी, साबिक मेंबर सूबाई असम्बली फैसल हयात सबुआना, सुल्तान सिकंदर भरवाना, राशिदा याकूब शेख और अमीर अब्बास सियाल शरीक थे। सूबाई वज़ीर ने पेश किए हिफाजती इक़दाम, हंगामी प्लान और जिले इमरजेंसी कंट्रोल रूम का जायजा लिया। रेस्क्यू 1122, महकमा आबपाशी, वासा और मुतल्लिका इदारों की तैयारियों का भी मुआयना किया गया। दरियाओं में पानी के बहाव का मुसलसल जायजा लिया जा रहा है। दरियाए चनाब में तूफानी पानी की सतह रफ्ता रफ्ता बुलंद होने लगी। चिन्योट से बड़ा रैला छंग की जानिब रवां दवा। साहिली आबादियों में खतरे की दस्तक पर इंतजामिया अलर्ट हो गई। महकमा तालीम ने जिला भर में 18 फ्लड रिलीफ कैंप्स फाल कर दिए। सीओ एजुकेशन तनवीर अहमद गजाली का दौरा, कैंप्स के इंतजामी अमूर और दस्तियाब सहूलियात का जायजा लिया। अफसरान और एहलकारों को चौकस रहने की हिदायत। आइंदा चंद घंटे अहम करार। जंग के मकाम पर दरियाए चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा देखा जाने लगा। चिन्योट ब्रिज से गुजरने वाला पानी का रेला तेजी से जंग की जानिब गामजन, जबकि तरीमो बैराज पर पानी का बहाव 1,11,000 क्यूसिक से तजावुज कर गया। इस वक्त हिफाजती बंद के अंदर 1,50,000 क्यूसिक से जायद का रेला तरीमो की जानिब रवां दवा है। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर जिले इंतजामिया इंतहाई मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर के अहकामात पर महकमा तालीम ने जिला भर में 18 फ्लड रिलीफ कैंप्स फाल कर दिए। सीओ एजुकेशन तनवीर अहमद गजाली ने कैंप्स का तफसीली दौरा किया। वहाँ मौजूद इंतजामी अमूर और शहरियों के लिए दस्तियाब सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने तमाम अफसरान और एहलकारान को हम वक्त अलर्ट रहने और मुमकिन इमरजेंसी से निपटने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल रखने की सख्त हिदायत की। सैलाब का खतरा मौजूद है लेकिन इतनी बड़ी पैनिक होने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत थोड़ा पानी है लेकिन हम मुश्किल वक्त आने से पहले तैयार हैं। तो हमने 18 स्कूल्स में डिस्ट्रिक्ट जंग में इसको तकसीम किया फ्लड रिलीफ कैंप के लिए। यहाँ पर गवर्नमेंट हाई स्कूल जंग सिटी में मौजूद है। तमाम कमरे खोल दिए गए हैं, वाशरूम को साफ़ सुथरा करवा दिया गया है और बुनियादी तमाम जो सहूलियात हम दे सकते हैं उसके लिए तैयार हैं। राउंड दी क्लॉक ये 24 आवर स्कूल खुला है हमारा। कोई भी अगर रिलीफ कैंप के लिए किसी को मसला होगा तो हम उसके लिए मौजूद हैं। दरियाए चनाब में पानी की बढ़ती सतह ने जहां साहिली आबादियों में तशवीश की लहर दौड़ा दी है, वहीं इंतजामिया का दावा है कि तमाम तर हिफाजती तदाबीर मुकम्मल हैं। तहम आइंदा चंद घंटे मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के लिहाज से इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 झंग।
आसमान पर बादलों का रक्स, झंग में आज मज़ीद बारिश की पेशगोई, वासा इंतजामिया अलर्ट, अफसरान के हंगामी दौरे, शहर के 6 इलाकों को निशेबी डिक्लेयर करके खुसूसी इक़दाम का फैसला। यूसुफ शाह रोड, फवारा चौक समेत मज़ीद कौन से इलाके शामिल हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। मानसून के दौरान बारिशों का जोर, शहर में बादलों की आमदोरफ्त का सिलसिला भी जारी। मौसम का अहवाल बताने वालों ने झंग में आज भी बादल बरसने का इम्कान जाहिर किया। मुमकिन बारिश के पेश नजर वासा इंतजामिया हाई अलर्ट, अफसरान के शहर भर में हंगामी दौरे, शहर के 6 इलाकों को नशीबी करार देकर खुसूसी इंतजाम करने का फैसला। MPA रोड, रेल बाजार, झंग सिटी पार्क, यूसुफ शाह रोड और फवारा चौक समेत दीगर नशीबी इलाकों में निकासी याब के लिए खुसूसी इंतजाम किए जाने लगे। 6 पाउंडिंग पॉइंट्स हैं, ये हमारे बिल्कुल लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे यूसुफ शाह रोड है, उसके बाद हमारी बैक साइड पे जो वेटरनरी हॉस्पिटल है, इसके आगे अगले चौक में तालाब कमेटी आ जाता है, उसके बाद नवाज शरीफ पार्क है और मजीद अमजद पार्क के करीब पॉइंट्स हैं। ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो 6 पॉइंट्स जहाँ पर पानी का हमें ज़्यादा खदशा होता है कि इन पॉइंट्स के ऊपर पानी ज़्यादा खड़ा होता है। इसके अलावा भी शहर में चूँकि हमारे जो मैन होल्स हैं वो रोड के अंदर हैं, लेकिन रोड के साथ साथ कोई 2-3 इंच पानी खड़ा होने का इम्कान होता है, लेकिन उसको भी हम सक्कर्स के साथ निकाल लेते हैं क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा पौंडेज नहीं होती। वासा हुकाम के मुताबिक मुमकिन बारिश से निपटने के लिए अमले और मशीनरी को हाई अलर्ट रखा गया है ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी कार्रवाई यकीनी बनाई जा सके। कैमरामैन अली और अरबाब के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। निकासी आपके निज़ाम का फुकदान और जिला इंतजामिया की अदम दिलचस्पी, गला मंडी टोबा टेक्सिंग में पानी ने डेरे डाल लिए, आड़तियों के लिए अबली रहमत साबित होने लगा। ताउन फैलने से शहरियों और खरीदारों को मुश्किलात का सामना, कारोबारी सरगर्मियां मांद पड़ गई। मुतासरीन कहते हैं वासा को मुतअद्दिद बार शिकायत की मगर कोई सुनवाई ना हो सकी। गला मंडी टोबा टेक्सिंग में बारिश का पानी जमा होने से ताफुन फैल गया, आड़तियों और खरीदारों को मुश्किलात का सामना। इस हवाले से आड़तियों का कहना था कि बारिश के जमा पानी से कारोबारी सरगर्मियां मुतासर हो रही हैं। गला मंडी में निकासी आब का इंतजाम न होने से बारिश के बायस मसाइल जन्म ले रहे हैं। वासा को मुतअद्दिद बार पानी की निकासी के लिए शिकायत की गई लेकिन कोई एक्शन नहीं हो सका। बहुत ये पानी जब गंदा हो जाता है तो इधर बैठना मुश्किल हो जाता है। हमारी गुजारिश है कि हमारे साथ भी जिस तरह शहर का पानी निकालते हैं ना, इसी तरह इस पॉइंट को भी अपनी नज़र में रखें। जब बारिश होती है तो आगे ये पानी निकालना चाहिए। आड़तियों ने जिला इंतजामिया से पानी की फिलफौर निकासी का मुतालबा किया है। कैमरामैन हमाद जमील के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 टोबा टेक्सिंग।